Beginning with Almighty's name, who's the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are fine. From the platform of English Buffet.5, I am again going to impart you another very important lesson, that is common English errors. We make several mistakes, and the best learning is that which happens just because of the errors. Once we do the errors, and next, if we try to remove them by learning and practicing, then that knowledge gets firm in our mind, right? सो इस तरह से सीखना जो है वो कभी हमें भूलेगा नहीं. एक दफ़ा जो गलती हम करते हैं वो उसी गलती को ठीक करने से जो चीज़ सीखी जाती है वो कभी भूलती नहीं, राइट? So it's going to be your lesson number 3. In the previous lessons we did preposition errors, and today it's the turn for verbs. Viewers, verb जो हैं वो different angles से आपके सामने आएंगे. इनके spelling errors भी हो सकते हैं, राइट? प्रेजेंट पास्ट की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, इरेगुलर स्पेशली जो फॉर्म्स हैं, वो हमें कुछ मिसकॉन्सेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती हैं. सो वट एवर इट इज़, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल. So by the end of today's lesson, you will see how through common errors we can learn a lot, right? So the condition is you have to practice and you have to listen very, very attentively. See, there is a verb in front of you that is understand, okay? So instead of using it in this way, I am not understanding, we should use it in these two ways either, okay? I don't understand, or I am unable to understand, or not able to understand, right? So कुछ एरर्स ऐसी भी होती हैं व्यूअर्स के जो वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मैं कि दोज वर्ब्स विच आर एंडिंग ऑन ed आर कॉल्ड रेगुलर, एंड एनी अदर पैटर्न, एस्टेब्लिश्ड पैटर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉल्ड irregular pattern. And you can see in front of you कि जितने भी ये रेड कलर में वर्ब्स लिखे हुए हैं, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की गई है. दिस इज़ व्हाट वी डू कॉमनली इन आवर स्पीचेस. हम क्या करते हैं कि इन इरेगुलर वर्ब्स को समटाइम्स बाय मिस्टेक हम ये कंसिडर करते हैं कि परहैप्स दे आर रेगुलर, एंड सो अनकॉन्शियसली वी यूज़ ed विद देम. हालांकि टीच की सेकंड फॉर्म टॉट एंड टॉट है, थर्ड भी. बिल्ड की बिल्ट, बिल्ट. Choose, chose, chosen. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Hold, held, held. And steal, stole, stolen. So all these are irregular verbs. Whenever we are using irregular verbs, we have to double check we are correct or incorrect in its usage, right? So सबसे पहली चीज़ viewers आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप form of verb यूज़ करने लगें, so remember and keep it in your mind, is it regular or irregular, okay? क्योंकि बहुत से students भी अर्ली क्लासेस में ये मिस्टेक कर जाते हैं कि irregular verb के साथ वो regular का पैटर्न यूज़ कर जाते हैं, which is completely wrong, right? So इसको आपने फर्स्ट आपने एरर अपनी ये वाली रिमूव करनी है. Secondly, something commonly that we do, viewers, it is, see the sentence, we were on the way to school, suddenly the sky turns dark. इसमें क्या एरर है? इसमें एरर ये है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हम वर यूज़ कर रहे हैं विच रिप्रेजेंट्स द पास्ट टेंस, जबकि उसी से अगला सेंटेंस जो है उसमें भी इसी वाक़े की बात हो रही है, इसी की एक्सटेंशन है. इसमें हम टर्न्स की शक्ल में प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं, राइट? We should use here second form turned. Why? Because in the very first sentence we are relating something that happened in the past. We were on the way to school, right? कि हम स्कूल जा रहे थे, रास्ते में थे. Suddenly the sky turned dark, कि अचानक आसमान तारीक हो गया, right? So in this way, viewers, if we will be using past tense in one sentence and in the other we are using some other tense, instead of doing this, we should relate only one tense if we are talking about the past. If we are completely talking about the future, we should use the different forms of, we can say,
फ्यूचर, राइट। सो ये गलती आपने नहीं करनी। नेक्स्ट, मिसलेनियस, यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। लेट मी रीड देम फॉर यू। द शॉप विद इट्स फर्नीचर वॉज गटेड। इंस्टेड ऑफ सेइंग वॉज वी शुड से वर। Either Sana or Anna are married. Either or they both represents single person. Okay, so हमें इनके लिए इनको दो नहीं कंसिडर करना. If there is and in between Sana and Anna, then we should use are. But अगर either or है तो हमें is यूज़ करना है. इसी तरह से neither nor में भी सेम है. आगे देखिएगा, बैड न्यूज़ स्प्रेड फास्ट. बैड न्यूज़ मीन्स इट इज़ समथिंग वन न्यूज़. ओके, सो वी शुड यूज़ स्प्रेड्स फास्ट, राइट. यू नो व्यूअर्स के सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके वर्ब के साथ हमें एस और ई एस यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज वी विल बी रॉन्ग. सो ये एरर भी आपने जहन में रखनी है कि वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है. और लास्ट देखिए, पॉलिटिक्स आर अ गेम. इट्स रॉन्ग. पॉलिटिक्स के एंड पे एस है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये दिस इज़ समथिंग प्लूरल. नो, इट इज़ सिंगुलर. इसी तरह से न्यूज़ है, स्पेक्टिकल्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो इन सब के साथ आपने इज़ यूज़ करना है, राइट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी एरर्स हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं एंड वी बिकम वेरी मच अवे फ्रॉम द रियल इंग्लिश लैंग्वेज, द प्रैक्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो एक एक करके आप अपनी ये वाली मिस्टेक्स जो हैं इनको माइनस करें. डेफिनेटली काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे अपने अंदर. नेक्स्ट देखिएगा, जैसे पहले मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने वर्ब लगाना है. द लेक्चरर गिव अस मटेरियल, नो गिव्स अस. ओके, यहाँ पे एक एरर हम ये भी करते हैं व्यूअर्स के जो वर्ब के एक्चुअल स्पेलिंग होते हैं उसमें भी हम मिस्टेक कर जाते हैं. एंड आर verbs are misspelled by us. Instead of writing teaches, which is this one is right. So if we are writing s only, it will be wrong. Okay. इसी तरह से डबल वर्ब को भी यूज़ मत करें इकट्ठा इस तरह से कि दोनों की सेम फॉर्म्स हों. प्रेफर एंड गो बोथ आर फर्स्ट फॉर्म्स. आई प्रेफर गो, नो. ईदर यू शुड राइट आई प्रेफर गोइंग टू और आई प्रेफर टू गो टू, राइट. सो ये दोनों ठीक होंगे. इसी तरह से मैनी पीपल येलिंग इन सोशल मीडिया. हेयर वी आर लैकिंग द मेन वर्ब कम्प्लीटली, दैट इज़ मैनी पीपल आर येलिंग, राइट. और लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा, इट्स बिन अ हाफ ईयर, इट हैज़ बिन अ हाफ ईयर. या फिर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो पता चलेगा कि देर इज़ समथिंग एल्स विद इट. अगर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे तो ये आपका प्रोनाउन का पोजेसिव केस इट का बनेगा, विच इज़ रॉन्ग. सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वर्ब because verb is always in different forms which can confuse us. इस स्लाइड में देखिएगा व्यूअर्स, तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स न्यू नहीं हैं आपके लिए, कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जो न्यू हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. द फादर एज वेल एज हिज चिल्ड्रन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट. जब एज वेल एज यूज़ होगा तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जाएंगे. फादर के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज लिखेंगे, राइट. आगे चलिएगा, ये तमाम आप कर चुके हैं. यहाँ आते हैं, द हस्बैंड बिसाइड्स द वाइफ वर प्रेजेंट. बिसाइड्स यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिसाइड एंड हिज वाइफ वॉज. जिस तरह एज वेल एज में हमने फादर के अकॉर्डिंग वॉज लिखा, उसी तरह से यहाँ भी वॉज ही आएगा सिंगुलर वर्ब के. सिंगुलर वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट. ईदर और का इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूँ. इसी तरह से ये देखिएगा, 2 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज़ रॉन्ग. एस को देख के आपने ये मिसअंडरस्टैंड हरगिज़ नहीं करना कि दीज आर प्लूरल्स. ओके, जब भी आपको कोई नंबर दिया जाएगा दैट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. सो 2 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट. लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द आर्मी, विच इज़ रॉन्ग. ही हैज़ एनलिस्टेड इन द आर्मी. एनलिस्ट का मतलब यही है कि उसको लिस्ट में डाल लिया गया है. सो एनलिस्टेड हिमसेल्फ इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. नेक्स्ट,
ये एक बहुत कॉमन एरर है स्टूडेंट्स, जो हम अक्सर कर जाते हैं। वो क्या है? एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। एवरी मीन्स तमाम, लेकिन एवरी मीन्स एक। एवरी स्टूडेंट मीन्स हर एक। ओके, सो इट शुड बी लाइक्स। इट इज़ सिंगुलर, जो कि है तो सिंगुलर लेकिन रिप्रेजेंट सबको कर रहा है, लेकिन चूंकि है ये सिंगुलर इसलिए हमें एस लिखना चाहिए। इसी तरह से आई मस्ट टू कॉल हिम इमीजिएटली, नो, आई मस्ट कॉल हिम। ही इज़ बोरिंग इन द क्लास, ही इज़ बोर्ड इन द क्लास, राइट? So I hope you will understand these all the errors, and remember one thing: you have to double check your mistakes. Once you have done with your writing, try to proofread it, because proofreading will be telling you many times where you are wrong and where you are right. व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम मिस्टेक्स को बड़े गौर से देखेंगे और साथ साथ समझ के चलते जाएंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, राइट? सो आई होप you are going to like this video, which is totally meant for your betterment in English. If you want more videos, try to subscribe the channel, share these videos with others, and try to practice these concepts, because practice will make you perfect. Till the very next lesson, take care of yourself, viewers. Allah Hafiz.